Hello everyone. I hope all of you are doing great and keeping safe wherever you guys are. Now, as I do this for every single attempt, this is for May 21 or June or July whenever ICI conducts your exam. So this is an amendment video for CA intermediate auditing. Now, talking about auditing subject and the amendment for this attempt specifically, let me tell you this one thing which I've already told you once on Instagram channel and at other places as well, that see ICAI revised the ICAI material. So for May 21 onwards, there is a revised ICAI material which is available. Let me show you so that you get the overall understanding of what I'm trying to talk. So talking about intermediate course, going to auditing and assurance, can you see study material? And then can you see for May 21 exam onwards, they have a separate study material altogether. I've gone chapter by chapter, and let me tell you, you might have seen a lot of videos on YouTube or somewhere else that there are so many amendments, so many changes. It is my original habit that every 6 months I keep checking. So can you see there was an updated material for May 2020 also. There was a updated material for November 19 as well. So I keep updating our class modules on a regular basis. So if you really ask me, from May 2020 to the May 21, the study material changes made by ICAI are actually very less. Let me tell you what are the major changes. The major changes is, in every chapter, ICAI has included now more case study based questions. So there are more examples. So, there was lack of examples in the earlier study materials, but during our lectures, I think I have discussed so many examples, and you'll be shocked that lot of new examples which have come up in the latest study material, you would be able to relate to them somehow to the lectures and the examples what we have actually discussed. So आपको बहुत टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. आप उन केस स्टडी बेस्ड एग्जांपल्स को इजीली मॉड्यूल में जाकर के पढ़ सकते हो. मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वॉच दिस एंटायर अमेंडमेंट वीडियो कंप्लीटली, अंडरस्टैंड all stages, all parts what I'm going to talk about. I'll share one a PDF also with you, where all your important updates for May 21 are arranged together. Can you see this is your separate PDF? I will be passing it across to you so you can access it and you can understand chapter by chapter what small changes we have. And then after that, I would request you, go to ICA material, the latest one, and read case study based questions. Trust me, once your entire syllabus is over, you will not be in trouble at all. Now, major changes, case study based questions. So that is not a conceptual change. So there is no addition to your syllabus. First thing. Number two, are there any changes in individual chapters? Okay, I will go there. But before I go there, another confusion which a lot of students have. Sir, ICI came up with this. Can you see? Academic update applicable for May 21 examination. And in this, they've given you reference of two chapters. Chapter 5, that is frauds, SA 240, and chapter 10, that is company audit. Now, what really is this? Let me explain you. What do they really mean by there is actually no amendment. It's the same chapter which is copy pasted. Now, what happened is, when ICAI updated the study material from, let's say, May 2020 version to 2021 version, what they did was, one major change in the entire study material is they included reference of Caro 2020, because actually Caro 2020 was supposed to become applicable from the financial year 1st April 2020, which eventually was postponed or deferred for one more year. Now the actual applicability will come from audit of financial year 1st April 2021 onwards. So the financial year 1st April 2021 till 31st March 2022, when this financial year's audit is going to be get conducted, with that audit report you will include Caro 2020. It is actually deferred in real life by 1 year. But before this notification came, ICI had already made changes in their study material. तो उन्होंने क्या बोला, study material में changes कर दिया, but for the May 21 exam, they made only Caro 2016 applicable. Let me clarify this to you. Yes, earlier ICI said Caro 2020 is applicable for intermediate as well as final. Then later on they took this back. Now for both intermediate as well as final, for May 21 examination, Caro 2016 is available, is applicable, not Caro 2020. So since Caro 2016 is applicable, now they are saying there is an academic update.
एकेडमिक अपडेट इतना सही है कि उस चैप्टर के अंदर, फ्रॉड के चैप्टर में जो क्लॉज नंबर 10 का रेफरेंस होता है कारो का, वो भाई 2020 का कंसिडर मत करना, कारो 2016 ही कंसिडर करना, इतना सा ही अमेंडमेंट है। उसके अलावा इस पूरे एकेडमिक अमेंडमेंट में, इस पूरे एकेडमिक अपडेट्स के अंदर कोई और अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ कारो 2016 का रेफरेंस कंसिडर करना है फ्रॉड के लिए एज वेल एज कंपनी ऑडिट के अंदर, जहां एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो आएगा एज अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। बात समझ में आया क्या? अंडर 143 सबसेक्शन 11। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि भाई ये जो 5 और 10 है इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ जो कारो 2020 लिख दिया था अपडेटेड मटेरियल के अंदर, तुम्हारे लिए वो 2016 ही एप्लीकेबल है, उसके लिए उन्होंने बोल दिया ये तुम्हारे लिए एक अमेंडमेंट पर्सपेक्टिव अपडेट दिया गया है। इज दिस क्लियर टू यू? ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि भाई आपके लिए 5 और 10 में टेक्निकली कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए चैप्टर दिया है। यही सेम चैप्टर उन्होंने कॉपी पेस्ट करके आपके आरटीपी में भी डाल दिया। सो इफ यू एक्चुअली गो टू आरटीपी, आपको सेम चीज मिलेगा। आरटीपी मे 21 आपको सेम चैप्टर 5 एंड 10, इट्स अ कॉपी पेस्ट। दे शुड हैव स्पेंड 5 मिनट्स अकॉर्डिंग टू मी। उन्होंने क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था कि भाई सिंपल है, ये दोनों चैप्टर में कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, सिर्फ 2020 के बजाय 2016 को रेफर करना। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट मी कम टू चैप्टर बाय चैप्टर चेंजेस इन द स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीएआई। तो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में क्या चेंजेस है? अब देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे चैप्टर 4 में बहुत सारे चेंजेस है। चैप्टर 4 इज योर इंटरनल रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, और आपको मालूम है मैं रिस्क असेसमेंट वाला पूरा पार्ट आपको ऐसे 315 के अंदर पढ़ाता हूं इन आवर ऐसे मॉड्यूल, एंड इंटरनल कंट्रोल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे चैप्टर 4 के अंदर होता है। ट्रस्ट मी, मे 2020 के अंदर एक्चुअली मेजर चेंजेस आए थे जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए थे। आपके लिए एक्चुअली में चैप्टर 4 में कोई अमेंडमेंट नहीं है एक्सेप्ट अ सिंपल टेबल। नाउ कम हियर, एक छोटा सा टेबल है जो आपको बता रहा हूं मैं। चैप्टर 4 में सिर्फ आपके लिए इतना सा ही अमेंडमेंट है। मतलब अगर मैं एक्चुअली में जाऊं, ये अपने लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है, चैप्टर 1 2 3 हम हमारे ऐसे मॉड्यूल में कवर करते हैं, देयर आर नो चेंजेस, नो चेंजेस। चैप्टर 5 एक्चुअली में नो चेंज, बोलने के लिए बोला है कि यहां पर अपडेट है, बट आपको मैंने बता दिया इट्स ओनली रेफरेंस ऑफ कारो 2016, उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। सैम्पलिंग एनालिटिकल प्रोसीजर हमारे ऐसे मॉड्यूल में आता है, इसमें भी कोई अपडेट नहीं है। उसके बाद चैप्टर 9 के अंदर, चैप्टर 10 के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है। यस, सो चेंजेस कहां कहां पे आते हैं हमारे पास में? एक आता है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, छोटा सा एक चेंज है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इट्स बेसिकली इंटरनल ऑडिट के लिए नए स्टैंडर्ड्स इशू कर दिए थे आपके सिलेबस के अंदर। अनफॉर्चुनेटली पुराने स्टैंडर्ड्स का लिस्ट दिया हुआ था, अब से नए स्टैंडर्ड्स का लिस्ट आपको इंक्लूड करके दिया है। आइडियली रियल लाइफ में उसका एप्लीकेबिलिटी जो है काउंसिल ने ओपन एंडेड रखा हुआ है, हमने फॉलो करना शुरू कर दिया है। मेजॉरिटी ऑफ द फर्म्स इन इंडिया आर कंप्लाइंग विद द अपडेटेड इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं आपको बताऊंगा उनका लिस्ट क्या है, आपको बस लिस्ट दिया आपके सिलेबस में और कुछ नहीं है। तो चलो आपको सबसे पहले वही बताता हूं मैं क्या है। तो एक काम करो, चैप्टर 4 में एक ही छोटा सा अमेंडमेंट है, बताता हूं क्या। इधर आओ, ये आपका एक लिस्ट है ऑन स्टैंडर्ड्स फॉर इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट्स, SIES करके आप बोल सकते हो। पहले आपको बताता हूं क्या था आपके सिलेबस में। तो अगर आप आपके अपने क्लास मॉड्यूल्स में जाओगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, शायद मैंने उसको आपके 610 के पास साथ में इंक्लूड किया होगा। लेट मी जस्ट चेक दिस। हाँ, मैंने आपको 610 में इंक्लूड कर दिया था उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी गो टू 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। देखो, ये इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स का लिस्ट दिया हुआ था पहले। कैन आई से SIA 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो मेरा बात? अब आपके लिए अपडेटेड लिस्ट बना करके दिया है, मतलब एक्चुअली अपडेटेड लिस्ट नोटिफाई पहले से ही हो चुका था। लेट मी शो यू दैट अपडेटेड लिस्ट आल्सो, मैंने यहां पे निकाल के रखा है आपके लिए ताकि आपको एक ही बार में समझ में आएगा। यस, सी प्रीफेस टू द फ्रेमवर्क ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट। कैन यू सी, जैसे हमारे पास में एसेज होते हैं 200 सीरीज, 300 सीरीज, 4 5 6 7, वैसे ही उन्होंने इंटरनल ऑडिट के लिए नए स्टैंडर्ड्स का सीरीज लाया। कैन यू सी, 100 सीरीज, 200 सीरीज, 300 to 400 सीरीज, ये सब नए स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट है। अगर मैं कोई भी एक आपको ओपन करके दिखाता हूं, लास्ट में देखो इफेक्टिव डेट करके मिलेगा आपको नंबर 5 पे, इफेक्टिव डेट। एंड इफ आई गो इन द एंड, वो ऐसा बोलेगा जब काउंसिल नोटिफाई करेगा तब एप्लीकेबल होने वाला। सी, द स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल फॉर इंटरनल ऑडिट्स बिगिनिंग और आफ्टर द डेट टू बी नोटिफाइड बाय द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट। सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज आपके सिलेबस में अब इंक्लूड किया है एज अ अमेंडमेंट कि भाई ये अपडेटेड लिस्ट है स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट का। सेम 110 120 दैट इज 100 सीरीज, 200 सीरीज हो गया,
300 सीरीज हो गया आपका, यही सेम सीरीज आपको मिलेगा। आपको क्या करने का है, बस आपको ये नंबर्स हैं, अपडेटेड सीरीज आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा और कोई भी रेफरेंस नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे ना, ये पुराने वाले स्टैंडर्ड्स थे, SIA 5, 6, 7, इनमें से जो 1 2 3 वाले थे उनको निकाल करके नए स्टैंडर्ड्स बनाने शुरू कर दिए। तो कैसे होता है, सारे स्टैंडर्ड्स एक साथ में चेंज नहीं होते, कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स चेंज होते रहते हैं, नए नए नोटिफाई होते जाएंगे। जब जब नया नोटिफाई होगा, पुराना वाला ऑटोमेटिकली खत्म होते जाएगा, एंड जब तक कोई नया नोटिफाई नहीं होगा तब तक तो जो ओल्ड वाला है, एग्जिस्टिंग वाला है, वही इफेक्ट में रहेगा, वही आपके लिए रेलेवेंट रहेगा। तो सिर्फ ये अपडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट का लिस्ट आपको दिया है, आपके सिलेबस में ये इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये आपको सीए फाइनल लेवल में इंटरनल ऑडिट के अंदर भी सारे स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ जैसे 390 वाला आपके सिलेबस में, 370 वाला आपके सिलेबस में, कुछ इसमें से रिपोर्टिंग वाले पार्ट जो है वो आपके सिलेबस में जरूर है, जब आपको इंटरनल ऑडिट चैप्टर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 4 में इसके अलावा कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। मैं वापस से बोल रहा हूं, पूरा रिस्क असेसमेंट वाला पार्ट एज पर एसी 315, ऑडिट रिस्क क्या होता है, IRCR DR क्या होता है, जो मैंने पढ़ाया था वही है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन IRCR एंड DR, फिर सर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप चाहो तो आप कभी भी रेफर कर सकते हो, यू कैन गो टू जस्ट 315 के पीछे मैं हमेशा डिटेल में आपको कुछ नोट्स पढ़ाता हूं। देखो 315 के नीचे आपको नोट्स मिलेंगे कुछ, 315 किधर गया, ये रहा। तो पहले आपको मैं पूरा 315 बेर ऐसे पढ़ाता हूं, उसके बाद में कैन यू सी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते हैं आपको, कैन यू सी रिस्क असेसमेंट पार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। तो सब कुछ अपने मॉड्यूल्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हमारे लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है। वापस से बोल रहा हूं, all the students who are referring my module 1 module 2, there is no change in chapter number 4 for you guys at all. Don't get confused by any video, तुम्हारे लिए कोई अपडेट नहीं है, हमने ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही डिस्कस करके रखा है। रादर आधे से ज्यादा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आईसीएन अभी इंक्लूड किए ना, उनसे इनडायरेक्ट वैसा टाइप के कंटेंट हमने क्लास के अंदर अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू पहले से ही डिस्कस किया हुआ है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप जाके एक आध क्वेश्चन को पढ़ के देखो, आपको सही में समझ में आएगा कि वैसा डिस्कशन ऑलरेडी क्लास में हो चुका है। अभी क्लियर? चैप्टर 4 के अंदर आपके लिए सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट का नया वाला लिस्ट है, उसके अलावा कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। दैट इज क्रिस्टल क्लियर। सो लेट्स गो बैक। अब सर नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है? चैप्टर 4 में अगर नहीं है तो कहां अपडेट है? अब आ जाओ चैप्टर नंबर 6 के अंदर। याद है ऑडिट ऑफ a business entity which has a automated business environment, तो ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट वाला जो पार्ट है, वहां पर एक छोटा सा अमेंडमेंट है। पहले आपको दिखाता हूं हमारा एग्जिस्टिंग चैप्टर कैसा दिखता है। लेट मी गो टू चैप्टर नंबर 6, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। अगर आपको याद है ना, यहां पर डिटेल में ये मैंने आपको EIS चैप्टर 1 में भी पढ़ाया था, याद है क्या? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होते हैं, उनके लिए मैनेजमेंट का रिस्पांसिबिलिटीज क्या है अंडर सेक्शन 134, ऑडिट का रिस्पांसिबिलिटी क्या है अंडर 143, याद है क्या? सब कुछ पढ़ाया था। ऑडिट कमेटी का रेलेवेंस क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेलेवेंस क्या है, सब पढ़ाया हुआ मैंने आपको। ये वही चीज थोड़ा और डिटेल में लिख के दिया है। तो टेक्निकली कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन दिया है। तो देखो ये IFCs वाला, ये हमारा आपके पास मॉड्यूल्स जो पढ़े हैं ना, वो मॉड्यूल्स ही है, ठीक है? ये प्रॉपर ऐसा बॉक्स बना के दिया था, बट ये बॉक्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो अभी अपडेटेड ICAI मटेरियल में इंक्लूड किया है। तो एक छोटा सा इसका डिटेल डिस्कशन जो है, तो मैं आपके लिए रिवीजन भी कर दूंगा, इसका इंडिविजुअल डिस्कशन भी कर देता हूं आपके साथ में, ताकि आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। तो क्या अमेंडमेंट है? यही बॉक्स का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। इधर आओ, कम हियर। देखो सेम चीज रेफरेंस मिलेगी आपको। सबसे पहले ये बोलेगा भाई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रेलेवेंट है, उसके लिए सबसे पहले मैनेजमेंट का रिस्पांसिबिलिटी क्या है। अगर आपको याद है सेक्शन 134 टॉक्स अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, उसके अंदर सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? DRS, डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट। आपको डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट में क्लियरली लिखना पड़ता है दैट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आप एक्नॉलेज करते हो कि आपने आपके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जो भी एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का रिक्वायरमेंट था वो लेट डाउन किए हैं, एंड वो ढंग से ऑपरेट कर रहे हैं फॉर द एंटायर पीरियड। देखो इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी द DRS, इफ यू वांट आई विल शो यू वन एग्जांपल आल्सो। मैंने आपको TCS का एग्जांपल दिखाया था, इस बार चाहिए तो मैं आपको रिलायंस का एग्जांपल दिखाता हूं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में 134 टॉक्स अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, वो बोलता है आपके बोर्ड रिपोर्ट में DRS करके आएगा, डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट। उसमें 5-6 पॉइंट आते हैं, उसमें आइडली पॉइंट नंबर 4 या 5, ये वैसे पॉइंट नंबर 5 है, बट कुछ एंटिटीज के केस में वो 4th पॉइंट भी होता है, बट अज्यूम करो 4th या 5th से फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट चीज क्या पॉइंट आने वाला है? सर डायरेक्टर्स को बोलना पड़ेगा दैट दे हैव लेड डाउन
इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो कंपनी ने फॉलो करने चाहिए थे, एंड सच इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, याद करो दो वर्ड, दे शुड बी एडिक्वेट एंड दे शुड ऑपरेट इफेक्टिवली। ये कंपनी के मैनेजमेंट ने इंश्योर किया है, ये उनका ड्यूटी बनता है, ये उन्होंने डीआरएस के अंदर लिख करके भी दिया है। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। मैं आपको आरआईएल का रिपोर्ट दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। देखो, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट है, उसके अंदर आपको एक डीआरएस करके हेडिंग मिलेगा, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। वहां पर आप एक काम करो, ये पॉइंट नंबर 5 पढ़ के देखो। देखो दिख रहा है क्या? पॉइंट नंबर ई, दिस इज नथिंग बट 134 सबसेक्शन 5 का पॉइंट नंबर ई। द डायरेक्टर्स have laid down internal financial controls which are to be followed by the company and they are adequate and were operating effectively. Can I say ये basically directors responsibility statement के अंदर directors को acknowledge या accept करना पड़ता है। यही चीज आपको वो इस बॉक्स के अंदर बोल रहा है। देखो बेसिकली सेम चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है ऑलरेडी, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि उन्होंने इस बार डिटेल में लिख के दे दिया ऑडिट के अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर। ये मैंने आपको ईआईएस चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ाया है पूरा 100%, ठीक है। नाउ दिस वाज फ्रॉम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सपेक्टिव। अब आता है ऑडिटर का बात, दैट इज सेक्शन 143। याद है क्या? एज अ ऑडिटर आपको 143 सबसेक्शन 3 बोलता है ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शंस। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज था रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स व्हिच आर रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैंने आपको बोला भी था जब नया कंपनीज एक्ट आया था तो ये रिपोर्टिंग सब कंपनीज के लिए एप्लीकेबल कर दिया था, बट देन दे रियलाइज लॉट ऑफ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि आईएफसीज फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होते क्या है आइडियली, समझ रहे हो मेरा बात, एंड दे नीडेड सम टाइम टू प्रिपेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए बाद में नोटिफिकेशन लाया गया और एक एग्जम्पशन का ऑप्शन दिया है। जरा देखो सर किस एंटिटी को छोड़ दिया है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सर इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पब्लिक कंपनीज। ओके, सिर्फ दिस शैल नॉट अप्लाई, मतलब सर 143 सबसेक्शन 3 बोलता है ऑडिटर का ड्यूटी बनता है कि उसको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ेगा ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एग्जांपल हमारा सेल्स प्रोसेस हो गया, परचेस प्रोसेस हो गया, याद है क्या? प्रोक्योरमेंट टू पे, पी टू पी, ऑर्डर टू कैश हो गया, एफए को अक्वायर करना, डिस्पोज करना, उसका प्रोसेस हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया, ट्रेजरी प्रोसेस हो गया। ये सारे के सारे हमारे आईएफसीज है विच आर इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इनके ऊपर आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ता है आपके ऑडिट रिपोर्ट के साथ में एक सेपरेट एनेक्शर के अंदर। ये आपका ड्यूटी है अंडर 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर आई। बट सर दिस रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनी के अंदर ऑब्वियसली 1 पर्सन हो गया उसको एग्जाम किया है, स्मॉल कंपनी को एग्जाम किया है, या सर अदर प्राइवेट कंपनीज। ये इंपॉर्टेंट है सर जिसका टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़ एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क करना, अगर एक प्राइवेट कंपनी ये दोनों कंडीशन फुलफिल करती है कि टर्नओवर भी 50 करोड़ के कम है एंड उसका जो टोटल बोरोइंग्स है वो 25 करोड़ से कम है, तो ये सर दोनों 50 एंड 25 वाला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर ये दोनों लिमिट्स के अंदर अंदर वो एंटिटी है तो ही उस प्राइवेट कंपनी के ऑडिटर के लिए 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर आई के हिसाब से ओपिनियन एक्सप्रेस करना रिक्वायर्ड नहीं है। अगर सर एक भी लिमिट क्रॉस हुआ तो सर उस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर को सेपरेट ओपिनियन देना पड़ेगा ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया कंपनी ऑडिट चैप्टर के अंदर, सेम चीज लिखा हुआ है, सिर्फ रिवाइज करके दे रहा हूं कि भाई कैसे उन्होंने सिर्फ एडिशनल चीज इंक्लूड किया। इट्स नॉट रियली एन अमेंडमेंट, सिर्फ चैप्टर 6 में नया इंक्लूड किया है, पहले सिर्फ ये हेडिंग्स था, इनका डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट वापस से रिपीट करके दे दिया। आर यू कंफर्टेबल? तो सर ये था मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये था ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम चीज मैंने आपको ईआईएस चैप्टर 1 में भी पढ़ाया है, ऑडिट के अंदर चैप्टर नंबर 10 जो कंपनी ऑडिट है वहां भी पढ़ाया है, ठीक है। आपने लॉ के अंदर भी सेम चीज पढ़ा है। नेक्स्ट 177 टॉक्स अबाउट ऑडिट कमिटी। नाउ एक काम करते हैं, मैंने आपको जो हमारा एमसी का ई बुक है वहां जाके दिखाता हूं कि 177 का रेलेवेंस क्या है। देखो ऑडिट कमिटी को एक ड्यूटी दिया है, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जो कंपनी के अंदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स होते हैं ना उनको रिव्यू करना, उनको मॉनिटर करवाना कि वो अच्छे से एडिक्वेटली डिजाइंड है या नहीं है, ढंग से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऑडिट कमिटी ना वो टीसीडब्ल्यूजी है, दे सिट अबव योर मैनेजमेंट, तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है अंडर 177 सबसेक्शन 4। एक काम करो इधर आओ मेरे साथ में, चेक करते हैं। लेट्स गो टू एमसीए ई बुक, Companies Act 2013. Let's find section 177, Audit Committee. यहां पर आओ। Can you see point number 4? Every audit committee shall act in accordance with the terms of reference specified. इसमें देखो यहां पर आओ,
रीड पॉइंट नंबर 7, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। क्या ये ड्यूटी है ऑडिट कमिटी के मेंबर्स का? ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यार उनकी। यही सेम चीज यहां रेफरेंस करके दिया है, देखो 177 के अंदर जो सबसेक्शन नंबर 4 है, वहां जो पॉइंट नंबर 7 है, every audit committee shall act in accordance with the terms of reference specified in writing by the board, which will include evaluation of internal financial controls and proper risk management system। ये risk management system के लिए मैंने आपको याद है क्या, एंटरप्राइज याद है कि एक पूरा एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ईआरएम करके कौन सा पढ़ाया था, कि एंटिटी लेवल अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है तो आपको उसके लिए प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट कमिटी बनाना पड़ेगा, उसके लिए मेंबर्स रहेंगे, हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आ जाएंगे वहां पे, जो एंटिटी लेवल पे व्हाट कैन पॉसिबली गो रॉन्ग आइडेंटिफाई करेंगे और अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज करेंगे। तो ये हमारा 177 का रेफरेंस आ गया। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये सब आपको बता दिया गया है, यही चीज मैंने आपको कंपनी ऑडिट में भी पढ़ाई थी। लास्ट, as per section 149 subsection 8, now 149 is about directors of the company, ठीक है। वहां डायरेक्टर्स के लिए भी जो कोड दिया है उसके अंदर छोटा सा रेफरेंस दिया है, इधर आओ देखो, सेक्शन 149 कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 149 के अंदर नंबर 8 देखना क्या बोलता है, the company and independent directors shall abide by the provisions specified in schedule number 4। शेड्यूल नंबर 4 में अगर आप आओगे, यहां पर देखो, the independent directors shall, read point number 4, satisfy themselves on the integrity of financial information and the financial controls and the system of risk management। क्या वो प्रॉपर तरीके से कंपनी में डिजाइन, बेसिकली टीसीडब्ल्यूजी में होते क्या है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ओनली। तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का 149 के अंदर भी रिस्पांसिबिलिटी बनता है कि भाई उनका ड्यूटी बनता है वो अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, इंश्योर करेंगे कि कंपनी में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग सिस्टम बनाया ना वो प्रॉपर है, एंड सर जो इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन किया हुआ ना वो ढंग से डिजाइन किया हुआ है, एंड रिस्क को मैनेज करने के लिए जो पूरा ओवरऑल मैकेनिज्म है कंपनी के अंदर वो अप्रोप्रिएट है और कंपनी के साइज के हिसाब से एडिक्वेट है। ये चीज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की 149(8) में भी दी है, वही चीज यहां रेफरेंस करके लिख के दिया है। देखो उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, ये चीज एक्चुअली में आपको सीए फाइनल लेवल पे पढ़ाई जाएगी, बिकॉज आपको 139 से लेकर के 148 तक आपका सिलेबस है, 149 से सीए फाइनल में चले जाता है। मैंने फिर भी आपको रेफरेंस के लिए बताया दैट जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं दे हैव टू अबाइड बाय द प्रोविजंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 4, जहां पर प्रॉपर कोड दिया है फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उन्होंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कोड ऑफ एथिक्स होता है ना आईसीआई के मेंबर्स के लिए, याद है, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी, जैसे सारे डायरेक्टर्स के लिए कोड दिया गया है, उस कोड में क्लियरली बोला है दे हैव टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स, सिर्फ वो पॉइंट निकाल के दिया है अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि वो ऑनेस्टली कैसे प्रिपेयर किए जा रहे हैं, एंड जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स है क्या वो ढंग से रोबस्ट, मतलब दे कवर एवरी एस्पेक्ट, दे आर एडिक्वेटली डिजाइंड, एंड डिफेंसिबल मतलब इस तरीके से बनाया है दैट कंट्रोल्स विल बी एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट ऑल पॉसिबल मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। आपको ये सब याद आ रहा होगा, बस उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। मतलब सर चैप्टर 6 में एक्चुअली में कंसेप्चुअली अमेंडमेंट नहीं है, जो ये चारों चीजें पहले भी लिख के दी हुई थी, मैंने आपको दिखाया सेम बॉक्स पहले भी था बट उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था, देखो सेम पहले भी था बट एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था, अब बस उसको एक्सप्लेन करके आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया है। मेरे हिसाब से एमसीक्यू में डेफिनेटली ये 149 सबसेक्शन 8 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये शेड्यूल 4 भी याद रख लेना भाई, कोई बड़ा बात नहीं है, एमसीक्यू में शेड्यूल नंबर भी पूछ ले तुमसे, लॉजिकल तो नहीं है फिर भी पूछ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। एंड 177 जो ऑडिट कमेटी वाला पार्ट है वो भी एक बार देख लेना कि ऑडिट कमेटी के मेंबर्स का ड्यूटी बनता है कि उन्होंने प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करना चाहिए कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का। रादर आई टेल यू, इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी ना ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के बाद ही होता है। ये सब आपके सिलेबस में थोड़ा कम है, मैंने आपको फिर भी जो भी रेस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए लेक्चर्स में 100% कवर किया है। आर यू कंफर्टेबल? तो बोलने के लिए बहुत लोग डराएंगे आपको चैप्टर 4 में बहुत चेंजेस है, 6 में कुछ नहीं है, 4 में सिर्फ आपके लिए इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का नया वाला जो लिस्ट है वो एप्लीकेबल कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। वर्ड बाय वर्ड मैंने सब कुछ मॉड्यूल पहले से ही बेस रखा हुआ था। आपका ऐसे मॉड्यूल रेफर करो, मेरा क्लास वाला मॉड्यूल नंबर 2 रेफर करो, मोर देन सफिशिएंट, कोई अदर बदलाव नहीं है। चैप्टर 6 सिर्फ एक एडिशनल टेबल है जो मैंने आपको बता दी। आर यू कंफर्टेबल? 4 एंड 6 खत्म हो चुके हैं। नाउ इसके अलावा अगर आप मुझे पूछोगे, इधर आओ, तो टेक्निकली आउट ऑफ फर्स्ट चैप्टर 8 तक जो हमारे मेजॉरिटी स्टैंडर्ड्स हैं,
तो चैप्टर 6 एक अलग होता था, याद है कि आपको, और चैप्टर 4 अलग होता था, बाकी सब स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। फ्रॉड वाले चैप्टर को बार बार बोला अमेंडमेंट अमेंडमेंट, कोई अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही है बेटा कि 2020 वाला क्लॉज नंबर नहीं, आपको 2016 वाला जो क्लॉज नंबर 10 है वही याद रखने का है, आपके सिलेबस में वही है। क्लियर है? चैप्टर 9 देयर इज नो चेंज एट ऑल, इट इज एब्सोल्युटली सेम। ठीक है। चैप्टर 10 कंपनी ऑडिट, बोलने के लिए एकेडमिक अपडेट्स वगैरह है नहीं, कोई अपडेट नहीं है, हमने पहले से सारे अमेंडमेंट कवर कर लिए थे जो भी एप्लीकेबल थे। सिर्फ ध्यान रखना कारो 2016 का एप्लीकेबिलिटी है, तो कहीं 2020 लिखा हुआ है तो तुम्हारे लिए 2016 ही एप्लीकेबल होगा। याद है क्या? ऑडिटर का ड्यूटी बनता है कि उसको अपनी रिपोर्ट के साथ में कारो इंक्लूड करना पड़ेगा। याद है क्या? 143 सबसेक्शन 11 ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्पेसिफाई करेगा मैटर्स को, वो आपको ऑडिट रिपोर्ट के साथ में इंक्लूड करने पड़ेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट एब्सोल्युटली नो चेंजेस एट ऑल, हमने ऑलरेडी सारे स्टैंडर्ड्स डिस्कस किए हैं। अब बात आती है दो चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13, बैंक ऑडिट एंड योर ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। जरा यहां पे आओ। बैंक ऑडिट में एक छोटा सा चेंज है, मतलब बहुत छोटा सा बोलूंगा, हाँ थोड़ा एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है। याद करो मैंने आपको बोला था बैंक ऑडिट में बैंक ऑडिट के बारे में कम लिखा है, पहले ऑडिट ज्यादा लिखा था। याद है क्या स्टार्टिंग में कि हमको हमारे पास एंगेजमेंट टीम मेंबर्स रहेंगे, पूरे एसेस लिखे थे। वहां पर एक हेडिंग था कि जितने भी हमारे एंगेजमेंट पार्टनर होते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर जो और जो हमारे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स होते हैं, उन सब में रेगुलरली डिस्कशन होना चाहिए। याद है क्या? प्रिलिमिनरी लेवल पे भी एक मीटिंग्स होनी चाहिए जहां एंगेजमेंट पार्टनर गाइड करता है मेंबर्स को कहां कहां इस ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क ज्यादा हो सकता है, कहां कहां हमको डिटेल में काम करना पड़ेगा, किन लोगों से हमें थोड़ा ज्यादा केयरफुली डील करना पड़ेगा, टैक्टफुली डील करना पड़ेगा। तो वही डिस्कशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए। लेट मी टेल यू आपके मॉड्यूल में क्या है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं, फिर चेंज क्या है वो दिखाता हूं। तो हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 के अंदर। बैंक ऑडिट, देखो यहां पे एक हेडिंग था, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन करके। ये आपके मॉड्यूल्स में ऑलरेडी है, मैं सब पुराने वाले मॉड्यूल्स रेफर कर रहा हूं। ठीक है कि भाई एंगेजमेंट टीम ने प्रॉपर डिस्कशंस करनी चाहिए जहां पे सारे सीनियर मेंबर्स जूनियर मेंबर्स सब साथ में आ रहे हैं, ताकि जो सीनियर मेंबर्स है वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, दैट कैसे पोटेंशियली गलतियां जो हो सकती है इस कंपनी में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हायर रिस्क एरियाज आपको इजीली मिल जाएंगे, जहां सिग्निफिकेंट रिस्क आपके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर वो आप कम्युनिकेट कर पाओगे, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स वगैरह डिस्कस कर पाओगे। तो ये सब ना नॉर्मली डिस्कशन होना चाहिए था। अब ये ना एडवांटेजेस क्या, फायदा क्या, सब कुछ लिखा हुआ था, बट कुछ एडिशनल चीज नहीं लिखी हुई थी। क्या नहीं लिखी हुई थी बोलता हूं, इधर आओ, कि सर द एंगेजमेंट टीम का जो एक्चुअल डिस्कशन होगा ना उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। मैं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक अच्छा 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू बन सकता है कि उनके डिस्कशन में एक्चुअली क्या क्या होने वाला है। मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ाया था। सबसे पहले भाई सीनियर मेंबर्स अपने एक्सपीरियंस से ये बताएंगे कि इस कंपनी के ऑडिट के अंदर आपको क्या लगता है कहां कहां चांसेस ज्यादा है गलतियां मिलने के, मतलब द एरियाज विच आर मोर प्रोन टू मटेरियल बेस्ड स्टेटमेंट, सी एरर्स दैट मे बी मोर लाइकली टू ऑकर, या कुछ ऐसे एरर्स जो उनको प्रायर ईयर्स में मिले होंगे, या सर कुछ ऐसे मेथड्स जिनके थ्रू इजीली फ्रॉड्स किए जाते हैं बैंक्स के अंदर, क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस है तो शायद उन्होंने पहले कभी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई किए होंगे, कंसीडर किए होंगे, डिटेक्ट किए होंगे। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो आपको बता सकते हैं कि भाई बैंकिंग ऑडिट्स के अंदर हमको ये कैटेगरी का फ्रॉड इजीली मिल सकता है, इस तरीके से हमको दिमाग में रखना चाहिए। फिर सर एंगेजमेंट लेवल पे क्या मेजर रिस्क है, क्या स्पेसिफिक एरिया बेसिक रिस्क हो सकती है, वो सब कुछ हमने डिस्कस करना चाहिए। एंड सर ऑब्वियसली जनरल पॉइंट, आप सबको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना पड़ेगा। याद है क्या? क्वेश्चनिंग माइंड एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा। एंड सर आपको सर उन एरियाज या उन इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए जहां शायद आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ये इंडिकेशन मिलेगा। याद है क्या वर्ड एक, फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर्स, एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, गलती करके उसको सही प्रूव करना, रैशनलाइज करना अपने गलतियों को। याद है क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको ऐसे 240 में पढ़ाया था, वो आपने कंसीडर करने चाहिए कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे कौन सा फैक्टर्स है जहां सर हमको लगता है हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिकेटर होंगे कि यहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं। लेट मी गिव यू 2-3 एग्जांपल। बैंक्स के केस के अंदर लेट्स से एलएलपी या एक नए पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स वगैरह ओपन कर रहे हो आप, और आपके पास प्रॉपर पार्टनरशिप डीड या एलएलपी की जो डीड है वही आपके पास में एज अ बैंक ऑर्गेनाइजेशन
आपने कंसिडर नहीं किया होगा, प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया है, केवाईसी के रिगार्डिंग डेटा ऑब्टेन नहीं किया है, या सर क्रेडिट वर्दीनेस को इवैल्यूएट नहीं किया है लोन्स या एडवांसेस देने से पहले। इस सब चीजों के अंदर अगर लूप होल्स अगर आपको मिल रहे हैं, ये इंडिकेशन है कंपनी में मेजर फ्रॉड्स हो सकते हैं। इस तरीके के डिस्कशंस आपको करने चाहिए विद ऑल योर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। ये एडिशनली इंक्लूड किया है, एंगेजमेंट टीम में डिस्कशन होना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा, ये पहले से था। 2 मिनट स्पेंड करो, इसको पढ़ो आराम से, शांति से। ये एक अच्छा एरिया जहां मुझे लगता है एक अलग से 4 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। रीड दिस केयरफुली। पर बहुत सिंपल है, मतलब आई एम श्योर मैंने आपको ये स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं पढ़ाए होंगे, बट इनडायरेक्टली जरूर बताया होगा कि क्या क्या डिस्कशन करना चाहिए। मैं इसके बारे में 100% श्योर हूं। डन। लास्ट पार्ट, अब आ जाओ चैप्टर नंबर 13 के अंदर। अब सुनो मेरा बात। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोई अमेंडमेंट नहीं है, सब कुछ सेम है। कुछ हेडिंग्स इंक्लूड कर दिए उन्होंने, सब कंटेंट वैसा का वैसा ही, कोई डरने का जरूरत नहीं, आप सेम मटेरियल को रेफर करो। ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑडिट, देयर इज नो चेंज एट ऑल। अब फाइनली इस बार मैं इंप्रेस हुआ। ये लोग मेरे से अग्री करेंगे, सिंस द टाइम आई स्टार्टेड टीचिंग, एक जमाने में ओल्ड सिलेबस था, तब चैप्टर नंबर 9 था, चैप्टर नंबर 9 ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस एंटिटीज। अब अपडेटेड सिलेबस में चैप्टर नंबर 13 आ गया, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। मतलब हमारा सिनेमा हॉल हो गया, होटल्स हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एनजीओज हो गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन सब के ऑडिट को आप स्पेशल ऑडिट बोल सकते हो या ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज बोलते हो। मैं हमेशा बोलता था कि इन सब का ऑडिट करते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। यू नो, आई एम रियली हैप्पी कि एक्चुअली में जो पॉइंट्स मटेरियल में थे ही नहीं, ये पॉइंट्स मैं लिखवाता था बच्चों को कि ये इंपॉर्टेंट 8-9 पॉइंट आप लिख के रखो। फाइनली आईसीएआई ने ऑलमोस्ट वही, लिटरली इफ यू आस्क मी, वर्ड बाय वर्ड वही पॉइंट्स को आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये मेरे अंदर का खुशी है, बस मैं आपको बता रहा हूं दैट थैंकफुली आई वॉज ऑलवेज ऑन द राइट डायरेक्शन एंड आईसीआई ने अपने मॉड्यूल के अंदर, मटेरियल के अंदर उस चेंज को लाया है। आई एम श्योर ये बच्चा अगर May 17 वाला रहेगा, उसको भी ये पॉइंट्स उसे क्लास नोट्स के अंदर मिलेंगे। May 18, नवंबर 18, May 19, चाहे तो May 14 या 15 वाला बच्चा भी रहेगा ना, तब भी उसको 100% सेम पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ओल्ड सिलेबस था या न्यू सिलेबस था, हमेशा मैंने ये 9 के 9 पॉइंट कंसिडर किए थे। हाँ, इन्होंने उसको 7 पॉइंट के अंदर क्लब कर दिया है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 को उन्होंने अलग से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। देखो, कोई भी स्पेशल पर्पस एंटिटी का अगर आप ऑडिट करना चाहते हो, सबसे पहले आप चेक करोगे उस एंटिटी का कंस्टिट्यूशन कैसे हुआ है। मतलब सर, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है या एक लेट्स से ट्रस्ट बना करके आप बिजनेस करते हो, किसी भी तरीके से आप स्पेशल पर्पस एंटिटी रन करते हो, सबसे पहले उनके रेस्पेक्टिव जो बायलॉज हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या उनको कंप्लाई करते हुए उस एंटिटी का कंस्टिट्यूशन हुआ है क्या। फिर सर, उस एंटिटी में जो हमारे ट्रस्टीज होंगे, जो मेंबर्स होंगे या जो मैनेजमेंट के बंदे होंगे, उनके पावर्स क्या हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होते हैं, उन मीटिंग्स के मुझे मिनट्स ऑब्टेन करने चाहिए। जैसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग के मिनट्स ऑब्टेन करते हैं, वैसे ही हमारा जो मैनेजिंग कमिटी रहेगा या ट्रस्टीज का मीटिंग्स रहेगा, उनका मुझे मिनट्स ऑब्टेन करना चाहिए मीटिंग से, ताकि मुझे पता चलेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या मेजर हो रहा है पूरे साल भर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीजें हम चेक करते हैं सबसे पहले। प्राइमरी, इसको हम प्रिलिमिनरी असेसमेंट के अंदर भी कवर कर सकते हो कि प्रिलिमिनरी लेवल पे क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहिए, चेक करना चाहिए। उसके बाद में सर, कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, उनका अकाउंटिंग करने का तरीका, उनका सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, क्या वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है या नहीं है। एंड फाइनली, हर एक बिजनेस के अंदर देयर विल बी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, देयर विल बी एरियाज वेर यू विल स्पेंड मनी। तो आपका पैसा कहां से आ रहा है उसको आप चेक करोगे, खर्चा आप कहां कहां कर रहे हो, क्लासिफाई कैसे कर रहे हो, बिजनेस रिलेटेड है या नहीं है, वो एक्सपेंसेस चेक करोगे। एंड सर, आप वेरीफाई करोगे आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। तो ये मेरा वेरिफिकेशन पार्ट हो गया, ये दोनों मेरे वाउचिंग हो गए, एंड इन दोनों के बाद आएगा मेरा फाइनल रिपोर्टिंग पार्ट। बट वाउचिंग वेरिफिकेशन से पहले मुझे इंटरनल कंट्रोल्स, अकाउंटिंग करने का अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं नहीं किए। एंड सर, उन सबसे पहले प्रिलिमिनरी लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन ही लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है क्या, मैं हमेशा ये
कीवर्ड्स यूज करता था, फाइनली उन्होंने ही ऐसे पॉइंट्स को इंक्लूड करके आपको लिख करके दे दिया है। अब आप ऑफिशियली खुलेआम इनको यूज कर सकते हो। मैं आपको पहले भी इसी तरीके से आंसर को प्रेजेंट करने के लिए क्लास में बोलता था। आई एम रियली हैप्पी, सेम चीज इंक्लूड किया है, कोई कंसेप्चुअल डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उन्होंने बताया है इस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। तो अब अगर आप किसी भी एंटिटी का स्पेशल पर्पस एंटिटी का ऑडिट का पूरा प्रोसीजर लिखोगे, आप इन हेडिंग्स के अंदर या इन पॉइंट्स को बेस रखते हुए पॉइंट्स लिख सकते हो। तो रिसीट्स के ऊपर 2-3 पॉइंट लिख दोगे, एक्सपेंसेस के ऊपर 2-3 पॉइंट्स लिख दोगे, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी पे 2-3 पॉइंट लिख दोगे। समझ रहे हो मेरे बात? बाकी 3-4 जनरल पॉइंट आपके जो एज इट इज है वैसे के वैसे आ जाएंगे। आई होप दिस इज कंफर्टेबल। कोई अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ क्या बदलाव किया था मटेरियल में मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो आपके पास मॉड्यूल्स है दे आर मोर देन सफिशिएंट, दे कवर एवरी गॉड डैम थिंग। आपको नहीं दिमाग लगाने का है, आपको कुछ और रेफर नहीं करने का है। आप इतना ही सुनो, इतना ही समझो, आपके लिए काफी है। डू यू गेट माई पॉइंट? डराने के लोग कुछ भी बोलेंगे, इसके अलावा ऑडिट के अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। अच्छा, अदर देन दिस मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, दैट विल बी अ गाइडेंस वीडियो, दैट हाउ डू यू रियली अप्रोच द एंटायर इंटर ऑडिटिंग सब्जेक्ट। जब आप पहली बार पढ़ रहे हो उसके लिए भी, या आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तब भी आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। एक सेपरेट वीडियो रहेगा, मोस्टली आपको कल या परसों के अंदर मिलने वाला है। आप सेम यूट्यूब चैनल पे रेफर कर सकते हो, आपको 100% वो वीडियो मिलेगा। उसके अलावा EIS-SM के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बिल्कुल बदलाव नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज है, सिर्फ कुछ वापस बोला ना, एग्जांपल्स को ऐड कर दिया। आईसीआई ने सिर्फ इस बार एग्जांपल्स को ज्यादा ऐड किया है। कुछ एग्जांपल्स है, ट्रस्ट मी, हमने एसएम में तो इतने ज्यादा एग्जांपल्स को डिस्कस किए हैं। वो जो एग्जांपल्स है वो इतने बेसिक लेवल के आपको लगेंगे। आप चाहो तो मॉड्यूल में जाके चैप्टर बाय चैप्टर एग्जांपल्स को देख सकते हो, आईसीआई मॉड्यूल रेफर करके। उसके अलावा कुछ भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो एसएम के लिए मैं कोई अलग से वीडियो नहीं बनाने वाला, बिकॉज उसके अलावा कुछ है ही नहीं वहां पे। ठीक है, ईआईएस के अंदर स्पेसिफिकली इफ यू आस्क मी, यस, सबसे ज्यादा चेंजेस जो है वो ईआईएस में है। बट जितने चेंजेस आप लोगों को लोगों से सुनने को मिल रहे हैं ना, उतने नहीं है। क्योंकि एक्चुअली में सेम मैं आपको बोला ना, मई 2020 के लिए सबसे ज्यादा चेंजेस थे। मई या नवंबर 2020 के सबसे ज्यादा चेंजेस थे, और मैंने उनको उसी अटेम्प्ट के लिए इंक्लूड करके आपको पढ़ा दिया था। हाँ, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 4 में कुछ चेंजेस हैं। चैप्टर 4 में सबसे ज्यादा चेंजेस हैं, चैप्टर 1 में कुछ चेंजेस हैं। बाकी जो बचा है 2, 3 एंड 5, वहां तो लिटरली एक एक छोटा छोटा चेंजेस है। डू यू गेट माय पॉइंट? उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं 2 सेपरेट लेक्चर्स लेने वाला हूं। देयर विल बी 2 सेपरेट वीडियोस, वन वेयर आई विल कवर EIS का चैप्टर 1, 2, 3 एंड 5, that will be one video. Another video will be on chapter number 4 entirely, because वहां पे थोड़ा डिस्कशन डिटेल में करना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए 2 अलग अलग PDF भी मिल जाएंगे दोनों लेक्चर के लिए। ठीक है, वो दोनों आप रेफर कर सकते हो और वो दोनों लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो। बट इतने ज्यादा चेंजेस नहीं है जितने आप बाकी लोगों सुन रहे हो, बिकॉज हमने वो ऑलरेडी मई 20 एंड नवंबर 22 के 20 के पर्सपेक्टिव जो भी आया था ना, वो ऑलरेडी कवर कर लिया था। आपके लिए है अमेंडमेंट्स EIS में, मैं मना नहीं करूंगा, बट थोड़े माइनर कैटेगरी के 1 और 4 में फिर भी अच्छे हैं। बाकी चैप्टर जो 2, 3, 5 है वहां तो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल लिटरली। अभी गुड, डोंट वरी अबाउट दिस। उसके लिए आपको 2 सेपरेट लेक्चर्स मिल जाएंगे जल्दी ही। आई होप आप लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके अलावा प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए। यू हैव दिस एडिशनल नंबर ऑफ डेज, ट्राई टू यूज दिस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल। आप एक काम कर सकते हो, ये मेरा नंबर आपको ऑलरेडी मालूम है, 7507545533। यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप हियर, या आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो सेम नंबर के ऊपर। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के साथ में मिल जाएगा। वहां पर आपको ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, और आने वाले EIS-SM वाले जो अपडेट्स है वो भी मिल जाएंगे। एंड जो भी एडिशनल कंटेंट मैं डालते रहूंगा वो आपको सेम टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स इट गाइस, स्टे सेफ। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। बाय बाय।